गुड इवनिंग गाइस। सो इसके पहले हम लोगों ने जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन डॉट ओनेक्स पिप रेडियस ऑथेंटिकेशन with Cisco 293 series switches plus dot onex authentications. If your environment, if your lab environment or any other environment in a company or small company, so don't have the domain Active Directory. So what should I do that time? How to use the ClearPass? If the domain is not there in a company, so how to authenticate endpoint with the help of username passwords? So I will show you how to do this. Okay. In this example, last previous lecture we have completed a MAC authentication. Is a MAC authentication with the help of username password itself is a MAC address of the systems. That means MAC address itself username password. So that username password should be in MAC address with the endpoint repository. So just a moment, I'll show you. So endpoint repository, that means our endpoint repository, this is an endpoint repository. So endpoint should be authenticated with the MAC address of the systems. And other is .onex authentication also completed, because of the .onex authentications is the authentication with the help of domain IDs only. That IP and PIP, protect extensible authentication protocol, that PIP authenticate with the help of IDs. So there are three types of authentication method: WebAuth, MacAuth and .onex. So all these three are completed as per the previous lecture. But some other query, because if in the company, in your networks, you not using the domain, not using the Active Directory, but your system should be authenticated with your username passwords, which we are configured in your database. So how to achieve this scenario? Because so many students in the last lecture we have completed, so they asked about the I don't have the AD, so how do you use the user should be authenticated with the username passwords, but MAC address is not secured as compared to .onex. So that's why going to .onex is very more secured as per the MacAuth. So this example, I just show you the example about the how to achieve this. In the ClearPass, we have one option, local database, local user database. So we achieve the local user database for this our lab. Just I show you. This is our total today topology. This is a topology we are explaining, and I are completing this lab to these lectures. So how to do this step by step I will explain to you. .onex authentication use without domain ID, that main motto of these lectures. मतलब हमारे कंपनी में डोमेन नहीं है, फिर भी हम लोग यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू पीसी को अथेंटिकेट करा सकते विद द हेल्प ऑफ .onex. सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेरे ClearPass का IP 192.168.0.120, उसका प्रीसेट किए की एडमिन 123, ये मेरा लैब सेटअप्स है. So don't be confused, don't use a simple admin username password. Okay, it's be complicated, hence 15 digit alphanumeric and complex should be use of the preset key. It's a lab setup इसलिए मैं आपको ये की यूज करो, बट नॉर्मली ये की यूज आपको यूज नहीं करना है. एडमिन वाला पासवर्ड या कोई भी चाहे सिस्को या ClearPass किसी में आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एडमिन वाला यूजरनेम पासवर्ड्स इजीली क्रैक होता है, क्योंकि नॉर्मली 90% पब्लिक इसी को ये प्रेफर करती है. बट हम लोग वो नहीं, हम लोग इंजीनियर्स है, सो आपको हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करना है यूज़र नेम पासवर्ड की तरफ. ठीक है, अभी हमारा जो स्विच है 2960 स्विच, इस स्विच के ऊपर लैप करेंगे. वो स्विच के ऊपर मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, इसका IP एड्रेस 192.168.0.200 है. स्विच का IP 0.200 है, सॉरी इसका IP 200 है. इसका IP लैपटॉप का IP इधर है, एम्प्लॉय जो लिखा है वो लैपटॉप से, ये स्विच का IP में दिखाएगा. लैपटॉप का IP 146 है, 0.146 मैंने इसमें दिखाया नहीं. ओके, तो ये लैब हमको आज अचीव करना है. इसके लिए हमको बेसिक चीज़ पहले क्या करना चाहिए, ये हमारी लैब जो लैब हम कर रहे हैं, वो लैब में आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले हम अचीव क्या कर रहे हैं. हम लोग सबसे पहले अचीव कर रहे हैं कि हम लोग को डोमेन ID, हमारे कंपनी में डोमेन नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, कि हमारी कंपनी
उसको यूज़ नहीं करती, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट बोलता है कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू ही यूज़र ऑथेंटिकेट होना चाहिए। जो भी यूज़र, जो भी एंड पॉइंट, जो भी लैपटॉप अपने कंपनी के है, वो शुड बी लॉग इन विद द यूज़र नेम पासवर्ड विच आई कॉन्फ़िगर इन योर डेटाबेस। मतलब आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके डेटाबेस में डाला है उसी के थ्रू, हमारा यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू यूज़र लॉगिन होना चाहिए, ना कि मैक एड्रेस के थ्रू। मैक एड्रेस इज़ नॉट सिक्योर, इसीलिए हमारी कंपनी चाहती है कि हमारे पास डोमेन नहीं है, लेकिन आपके क्लियर पास में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करो जिसकी वजह से मेरा यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ हो और यूज़र लॉगिन हो, और विजुअल वेरीफाई होने के बाद ही लॉगिन होना चाहिए। ये भी सब चीज़ देखा जाएगा। तो .NET जो होता है मोर सिक्योर है और यूज़र नेम पासवर्ड बेस्ड, .NET यूज़र नेम पासवर्ड बेस्ड है, इसीलिए हम .NET यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास AD नहीं है, तो हम उसको विदाउट AD वी आर यूजिंग .NET। सो ये मेरा लैब है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियर पास में लॉगिन करना है। मेरा फर्स्ट जस्ट एक्सप्लेन। सो सब इसको ध्यान रखना कि ये आपका लैब सेटअप है और ये आपको लाइव में भी यूज़ होगा, तो ये ध्यान रहे कि आपको इस चीज़ को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। विदाउट AD हम यूज़ करने वाले इसको हम लोग कर रहे हैं। विदाउट डोमेन ID, ओके। और नो एक्टिव ओके। तो ये अपना लैब सेटअप से हम लोग पहले आपको जो सबसे पहले ये हमारा लैब हम बनाए, उसके पहले आपको क्या करना है, जो स्विच है आपका नेटवर्क का जो स्विच है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। स्विच को पहले आपके डिवाइस में ऐड करना है। क्लियर पास में आपको ये टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, ये टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, वो स्टेप आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको इन्फोर्समेंट पॉलिसी आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है। मैं आपको टेम्परेरी जैसा चाहे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मकसद हमारा है कि विदाउट डोमेन ID वी आर यूजिंग दी ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम पासवर्ड्स, ओके। सो फर्स्ट विल डू add the switch name and the particular IP address, enter the preset की। जो आप प्रीसेट की करेंगे वो सेम प्रीसेट की आपको स्विच में यूज़ करना है। वेंडर नेम आपको डालना है, वेंडर नाम आपका जो भी, मेरा सिस्को का स्विच है सिस्को डालूंगा, अगर आपका अलग है तो जुनिपर डालिए। जो भी रहेगा वेंडर स्पेसिफिक है। अगर वेंडर नहीं तो IETF आप डाल सकते हैं। अगर वेंडर उसमें अवेलेबल नहीं है तो IETF हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये होने के बाद मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ मैंने ऐड किया है कि नहीं। जस्ट 1 सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन जाने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जो स्विच है मेरा, ये स्विच है, इसमें आपको क्या डालना है, IP एड्रेस डालना है। स्विच का IP एड्रेस डाल दिया, प्रीसेट डालिए, वेंडर नेम डाल दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप ग्रुप को कॉल कर रहे हैं तो ग्रुप में आप उस स्विच को पर्टिकुलर ग्रुप में उसका आपको डालना जरूरी है, जिसे मैंने इधर डाला है। अगर पर्टिकुलर ग्रुप आप कॉल कर रहे हैं इस सर्विसेज में तो आपको ग्रुप में उस स्विच को डालना जरूरी है। पहली चीज़ आपको डिवाइस ऐड करना कंपलसरी है, जो आपको .NET ऑथेंटिकेट करवाना उस स्विच के थ्रू, ओके। उसके बाद आपको डिवाइस ग्रुप में आप डालना। अगर डिवाइस अब सर्विस पॉलिसी में ग्रुप को कॉल कर रहे हैं तो आपको डिवाइस ग्रुप में वो ग्रुप डालना जरूरी है। अगर नहीं कॉल कर रहे हैं तो लेट इट बी, नो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ग्रुप ओपन सर्विस में आप चलाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाएगा। ये दो चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, अभी हम लोग जाते हैं अपने टेम्पलेट PPT की तरफ। ये होने के बाद आपको बनाना है इन्फोर्समेंट प्रोफाइल। सबसे पहले इन्फोर्समेंट प्रोफाइल बनाने से पहले आपको सबसे पहले यूज़र क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट कहाँ करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन में, लोकल यूज़र्स में, लोकल डेटाबेस में। इसमें 3 नाम के यूज़र बना हुआ है, शब्बीर डेस्ट एडमिन। हम जैसे अभी एग्जाम्पल शब्बीर है, मैं आपको एक नया यूज़र बना के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते एक संदीप ले लेते हैं, ओके। संदीप नाम का यूज़र है हमारा, ये हम बना रहे हैं संदीप के थ्रू। पासवर्ड जो भी आप रखें कॉम्प्लेक्स रखें, ये यूज़र ने पासवर्ड से ही वो यूज़र लॉगिन होगा, ओके। रोल्स हम लोग ले लेते हैं एम्प्लॉय। आप बहुत सारे इसमें आप लोकल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी
विदाउट एडी के लिए यूज़ करें तो हम एम्प्लॉय यूज़ करेंगे। डिपार्टमेंट क्या, ये डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट आपका निकाल दीजिए फाइनेंस करके। ओके, फाइनेंस ये लिखना पड़ता है। ओके, फाइनेंस बन गया, सेव करके। तो आपको क्या करना है, पहले आपको संदीप करके एक लोकल डेटाबेस में यूज़र करना है। ये यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू डॉटोनेक्स ऑथेंटिकेशन होगा, ये यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू। अगर आपका आईडी नहीं तो ये आपका आईडी का काम करेगा। लोकल डेटाबेस में आप यूज़र बनाइए और उस यूज़र को शेयर कर दीजिए पर्टिकुलर यूज़र को। ये यूज़र अपने यूज़र नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट होगा और उसका प्रॉपर लॉग आपके स्विच के ऊपर भी आएगा। ठीक है, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कैसे लॉग आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आएगा आपका, ये दो चीज़ होने के बाद आपको इन्फोर्समेंट पॉलिसी में प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल हमने जो बनाया ये 201 नंबर का प्रोफाइल है। ये आपको प्रोफाइल बनाए विलियन के लिए। अगर विलियन को कॉल करें, विलियन को कॉल आपको करना है पॉलिसी में, तो विलियन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता कुछ डबल होगा मुझे। ठीक है, तो विलियन में आपको प्रोफाइल आपको बनाना है। विलियन प्रोफाइल नाम डाल दें जो भी आपको डालना है। एट्रीब्यूट आपको स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट डालना है। आईटीएफ के विलियन 13 स्टैंडर्ड है, लेकिन आपका जो विलियन आप कॉल करने वाला वो विलियन आपको इधर, मेरा विलियन डिफॉल्ट विलियन 1 है, तो विलियन 1 को कॉल किया। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल बना गया। प्रोफाइल आपको सिंपल है, ये प्रोफाइल आपको इस तरह बनाना है। आईटीएफ टनल मीडियम टाइप IEEE 80216, आईटीएफ टनल टाइप विलियन 13, आईटीएफ टनल प्राइवेट ग्रुप आईडी मतलब अब विलियन आईडी जो 13, 14, 15, 16 जो भी रहेगा वो आपको करना है। एक्शन रहेगा, टाइप रेडियस रहेगा। ये होने के बाद हम आप प्ले तरफ आते हैं, टैब की तरफ। ये हो गया आपका। ठीक है, अभी आ गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। ये आपने क्या बनाया, अच्छा ठीक, सेकंड आपको बनाना है पॉलिसी। आपको जाना कहाँ पर है, प्रोफाइल आपने बना लिया, अभी आपको बनाना है पॉलिसी। मेरे पास आई थिंक पॉलिसी बनी है, तो मैं भी पॉलिसी आपको दिखाता हूँ। सिस्को डॉटोनेक्स पॉलिसी लोकल यूजर्स। पॉलिसी में आपको कुछ नहीं, सिंपल आपको नाम लिखना है, डिटेल्स लिखना है, डिफॉल्ट अलाउ रखना है। ओके, इनपुट्स में आने के बाद आपको पॉलिसी में अलाउ करना है। रूल्स आपको करना है, रूल आपको क्या करना है, रूल देख लीजिए। पहला रूल आपका लगेगा लोकल यूजर्स जो कॉल करेगा। डिपार्टमेंट क्या है, इक्वल्स फाइनेंस, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस। अगर आपका फाइनेंस नहीं है तो लोकल यूजर आप करके आप मल्टीपल दूसरा भी डिपार्टमेंट डाल सकते हैं। आप लोकल यूजर करके आप अभी डिपार्टमेंट आप बदल सकते हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट आपने दूसरा लिया है तो आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपको डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा आईटी करके। ठीक है, तो ये आईटी आपको दिख किस लिए नहीं रहा है कि आपने यहाँ आईटी का कुछ चीज़ बनाया नहीं, कहाँ पे लोकल यूजर में है। इसलिए अगर आप जब भी बनाओगे तो आपको लोकल यूजर जाके पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक ही अलग सिलेक्ट किया ना, इसलिए आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। तो मैं सबसे CPPM का डिपार्टमेंट में चेंज कर देता हूँ, उसका मैं एम्प्लॉय की जगह मैं ले लेता हूँ उसको, और ले लेता हूँ कुछ, एक मिनट। ये आपके रोल्स में डिफाई, आपको ये रोल आपको ऑलरेडी बनाना पड़ेगा। ये रोल आपको कहाँ मिलेंगे, ये रोल आपको बनाना है इधर। जो भी आप रोल बनाओगे, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एडमिन डिपार्टमेंट हम लिखते हैं IT मैनेजर, IT मैनेजर हम ले लेते हैं। अभी हम लोग कॉल करेंगे इधर CPPM को IT मैनेजर बना देते हैं। IT मैनेजर आएगा आपका, ये आ गया IT मैनेजर। ठीक है, ये आपका रोल्स आ गया। अब वैल्यू आप डाल दीजिए, वैल्यू आप अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। फाइनेंस है तो मैं इसको वैल्यू डालूंगा डिपार्टमेंट IT। ओके, अभी ये हो गया हमारा IT मैनेजर CPPM रोल्स। अभी आपको हम पॉलिसी बना रहे थे, पॉलिसी हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलिसी में हम लोग कॉल कर रहे थे मल्टीपल रोल्स के लिए। तो हम लोगों ने बोला था कि मल्टीपल रोल हम बना सकते हैं। अभी मैंने एक ही डिपार्टमेंट बनाया, मल्टीपल हम रोल बना सकते हैं। अभी हमको ऐड रोल की जगह हम लोग इसी रूल को हम कॉपी कर लेते हैं, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उसको एडिट कर लीजिए और सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज कर लीजिए। IT डिपार्टमेंट क्या था पहले, फाइनेंस, अभी डेट में हाँ कॉन्फ़िगर किया लोकल यूजर में, इसलिए आया IT। ठीक है, ये आपके दो डिपार्टमेंट गए। तो इस तरह से मल्टीपल यूजर, मल्टीपल डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। मल्टीपल
तो ये आप सब चीज़ कर सकते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट में आप दे सकते हैं, एडमिन, एचआर। तो लोकल डेटाबेस में उसके हिसाब से आप यूज़र को डिफाइन कर सकते हैं। ये आईटी का बंदा है, ये फाइनेंस का है, ये एचआर का है, या ये मैनेजर व्हाटएवर है, वीआईपी। तो इस तरह से आप मल्टीपल रोल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। रोल के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए था, एक्शन जो लगाना है, आपकी जो प्रोफाइल बना अपने प्रोफाइल को मैंने इसमें बाइंड किया है। आपको जब मैंने प्रोफाइल बनाया था विलन बेस्ड 200 का, ये मैंने प्रोफाइल को कॉल किया, दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने कॉल किया पॉलिसी को, ये मेरी पॉलिसी बन गई। अभी हमारा बन गया प्रोफाइल बन गया, अभी हमारा प्रोफाइल बन गया प्लस आपका क्या बन गया, अभी हमारा प्रोफाइल पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉलिसी के हमारा बनना है अभी सर्विस। अभी हम जाएंगे सर्विस। आपको तीसरा चीज़ है सर्विस बनाना है। आपको सर्विस बनाने किस तरह जाना है, आपको वापस क्लियर पास पे लॉगिन करना है, सर्विसेज में क्लिक करना है। ऑलरेडी बने हुई पॉलिसी को हम क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने पॉलिसी बनाया .NX लोकल लॉगिन यूजर्स, ठीक है, .NX की पॉलिसी है। ठीक है, ऑथराइजेशन लिया है मैंने, ऑथेंटिकेशन देखो इफ TLS का दिया हुआ है। इसमें ऑथेंटिकेशन सोर्स जो है वो शुड भी आपका होना चाहिए लोकल डेटाबेस। इसमें लोकल आप ऑथेंटिकेशन सोर्स नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, AD यूजर डोमेन ID यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा .NX होगा, हमारा .NX किसके थ्रू होगा, लोकल यूजर के, हमारे AD नहीं है, लेकिन हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, लोकल यूजर रिपोजिटरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, रोल्स जो आप चाहे रोल डाल सकते हो, वो आप डिफाइन रोल आप कर सकते हैं, जो भी आपका रोल है। डिपार्टमेंट पॉलिसी इन्फोर्समेंट हमने जो बनाई वो डाला, हम देखिए हमने जो पॉलिसी बनाया था उसको इस पॉलिसी और इसमें कॉल करना है। ठीक है, ये आपकी पॉलिसी। अभी इसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखा, .NX में मैंने किसी स्विच को ग्रुप में कॉल नहीं किया, ये ब्रॉडकास्ट है, मतलब ये जितने भी आपके नेटवर्क पे स्विचेस है सबको लग जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि आपका नेटवर्क में सिर्फ वो पर्टिकुलर स्विच को लगे, तो आपको ये पॉलिसी के अंदर आपको कॉल करना पड़ेगा, किसको, स्विच को। तो उसके लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन NAD IP स्विच IP जो भी है। अगर मेरा NAD स्विच है तो स्विच NAD IP रहेगा, और क्या रहेगा, बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, और उस ग्रुप में कॉल करना पड़ेगा पर्टिकुलर स्विच के ग्रुप को, या पर्टिकुलर स्विच को कॉल ना, तो स्विच को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी सिर्फ ये पॉलिसी सिर्फ इस ग्रुप को लगेगी, इस ग्रुप में जितने भी स्विच है उसी को लगेगी, बाकी किसी को लगेगी। लेकिन मैंने क्या किया, इसको लगाया नहीं, मैंने किया कि इस क्रिस स्विच को जितने भी मेरे नेटवर्क में स्विचेस है, जितने मेरे नेटवर्क यूजर सबको ये पॉलिसी लगे, ऐसा हमने इसको कॉल किया। ये ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में अगर आपको पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कॉल करना है, पर्टिकुलर स्विच के लिए कॉल करना है, तो ये आपको ये पॉलिसी में ग्रुप कनेक्शन ग्रुप में आपको पर्टिकुलर स्विच या उस ग्रुप को कॉल करना पड़ेगा। ओके, क्या किया, नाम डाल दिया मैंने, एक बार दिखा देता हूँ। पॉलिसी नाम डाल दिया, उसका सर्विस टाइप है, वायर्ड है, इनेबल है, मैच ऑल फुल कंडीशन, ITF के 2 कंडीशन ने लिया है। इसमें किसी ग्रुप को कॉल नहीं किया, किसी स्विच को मैंने कॉल नहीं किया, ये ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, यूजर रिपोजिटरी रखा है इसमें। ओके, ये हमारी पॉलिसी। अभी हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, तो हम लोग वही पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया तीसरा पॉइंट। ये हमने पॉलिसी बना ली। उसके बाद आपका आया, ये भी हो गया आपका इन्फोर्समेंट प्रोफाइल, मैंने ये यूज़र बनाया हम लोगों ने। उसके बाद यूज़र वही, ये आपका हो गया पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद आप जो भी क्लियर पास की जो भी पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगर कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, एंड पॉइंट के ऊपर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। एंड पॉइंट में या डेस्कटॉप के आपको सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंड पॉइंट में सेटिंग है, आपको services.mac में आपको पीसी के services.mac में जाके आपको वायर्ड ऑटो कॉन्फ़िग मैनुअल की जगह ऑटो कॉन्फ़िग करना है। ओके, उसके बाद आपका आएगा ऑटो कॉन्फ़िग होने के बाद आपको ये लैन के प्रॉपर्टी में जाकर आपको ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है यूज़र बेस्ड। ठीक है, यहाँ के ये आपको उसके बाद प्रोटेक्ट ई प्रॉपर्टी में जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी 2011 सिलेक्ट करना है। ठीक है, इनेबल फास्ट रिकरेंट नीचे होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये ध्यान रहे। ये आप जैसा आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम वैसे दिखना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन नेम विद पासवर्ड के लिए पूछेगा। ठीक है, ये आएगा आपका .NX यूज़र ऑथेंटिकेशन। यहाँ आपको रिप्लेस चेंज करना है यूज़र एंड क्रेडेंशियल, जो यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन जो आपका ये नॉर्मल होता है वो चेंज किया, आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन करवाना है। ठीक है, उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन के बाद आपको ये जैसा जब भी आपका यूज़र आएगा उसमें आपको क्या दिखेगा, एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा, लेकिन आपको पहले पूछेगा एंटर द यूज़र नेम पासवर्ड।
एंटर द यूज़र नेम पासवर्ड पूछने के बाद वो ऑथेंटिकेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये आपने कर लिया, अपने स्विच कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद आपका हो गया डेस्कटॉप सेटिंग। अभी आपका प्रॉब्लम क्या रहा, अभी आपका प्रॉब्लम है कि आपको स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अभी स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, अभी हमने लैब में सब कुछ टेस्ट कर ही दिया है, तो लैब में शो कर तो आपको स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में टेम्पलेट दिखा दो आपको। एक मिनट, स्विच में टेम्पलेट, एक सेकंड, टेम्पलेट मैं आपको टेम्पलेट शो करता हूँ। एक सेकंड जस्ट मिनट। हाँ उसके बाद है आपका ये ना, एक मिनट, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करता हूँ, आपको स्विच पे दिखेगा नहीं। एक सेकंड, जस्ट मिनट, लॉग इन कर रहा हूँ आपका, मैं स्विच को आपको दिखा रहा हूँ। वेट ए मिनट, जब तक आप ध्यान रहे, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, ओके, सो नो वरी। और संदीप समझ में आ रहा है ना? ओके, नहीं पहली बार में समझेगा नहीं, आपको एक बार प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो प्रैक्टिकल कर रहेंगे ना हम लोग, आपको खुद लैब करना है, एक्सेस देना है लैब को और करना है, ठीक है। तो मैं अभी अपना स्विच का एक्सेस दे रहा हूँ आपको। ये टेम्पलेट है, ये स्विच का टेम्पलेट है। इसमें मैंने क्या कॉल किया मैं आपको आपके नेटवर्क में आपको क्या करना है, सेम टेम्पलेट यूज़ करना है। इसमें सेम टेम्पलेट में कोई चेंज नहीं होंगे। इसको स्विच का टेम्पलेट है, अलग अलग स्विच का अलग टेम्पलेट होता है। इसमें आपका सिर्फ चेंज होगा, सर्वर का आईपी चेंज होगा और प्रीसेट की चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये ध्यान रहे, सर्वर का आईपी चेंज होगा प्लस प्रीसेट की चेंज होगा, बाकी सब चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। टेम्पलेट बाकी सब एज इट इज रहेगा। उसके साथ आपको यहाँ भी वही चीज़ करना है, सर्वर का आईपी चेंज होगा और प्रीसेट की चेंज होगा, ठीक है। बाकी सेम कॉपी पेस्ट आपको टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करवाना है, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट है। उसके बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है इंटरफेस के लिए सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज होगा विलान। अगर आपका विलान चेंज होता है तो विलान आपको जो भी रहेगा विलान आपको स्विच मोड एक्सेस विलान आपको 1 डालना है, ठीक है। तो विलान आपको इसमें डिफाइन 1 करना है। ये डेड सर्वर विलान कॉन्फ़िगर किया, आपको विलान है कॉन्फ़िगर करना है, इसमें विलान डाला हुआ नहीं है, ठीक है। तो विलान 1 है मेरा डिफ़ॉल्ट, इसलिए मैंने 1 रखा है। तो अपने हिसाब से आप जो भी विलान रहेगा उस विलान को ऐड करना, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें ये टेम्पलेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेगा सब कुछ। आपको सिर्फ सर्वर आईपी और प्रीसेट की चेंज करेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा, ये देखिए मैं स्विच का आपको दिखा रहा हूँ, लॉगिन शो कमांड शो ऑथेंटिकेशन, 1 सेकंड। सेशन से हमको क्या पता चलेगा, यूज़र ऑथेंटिकेट होता है, कोई वो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हुआ है। ये मेरा पीसी है, इसका मैं गेट मैक करके दिखो आपको, 1 सेकंड। ये गेट मैक, ये देखिए मेरा पीसी है, ये 077 फर्स्ट मैक एड्रेस मेरे पे लैपटॉप का मैक है जो अपन लैब में किया है, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर क्या मारते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/21 पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये यूज़र है शब्बीर नाम का, स्टेटस ऑथेंटिकेट है, स्टेटस सक्सेस है, ये .onex है, ठीक है। नीचे देखिए क्या हुआ है, .onex है, ओके। ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद हम उसको आईपी मिला के वो चेक कर, सो आईपी डिवाइस ट्रैकिंग ऑल। इसमें क्या होगा, यूज़र का आईपी आ गया 104, इसका आईपी है, मैक एड्रेस आ गया, विलान 1 लग गया, फास्ट 0/21 पे कनेक्ट है, एक्टिव है, ओके। तीसरा से लॉक चेक करते हैं आप लोग, ठीक है।
अभी हम लोग यही लॉग चेक करते हैं एक्सेस ट्रैकर में आ रहा है या नहीं। 1 सेकंड, अभी हम लॉग चेक करते हैं एक्सेस ट्रैकर में आ रहा है या नहीं। देखिए ये लॉग जो है ना अभी हमने कॉन्फ़िगर किया वो लॉग आ रहा है। ये देखिए इसमें आईपी एड्रेस यूज़र क्या था शब्बीर, स्विच का आईपी आ गया, पोस्चर हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, पोस्चर है नहीं, पॉलिसी कौन सी .NX, ईपी पर है, लोकल होस्ट, लोकल रिपोजिटरी आ गया, और प्रोफाइल क्या था, जो प्रोफाइल वो प्रोफाइल कॉल हुआ। ओके, तो पूरा प्रोफाइल अपना मैच हुआ है। ओके, इसमें आप देख लीजिए पोर्ट नंबर किस पे कनेक्टेड है, यूजर नेम क्या है। ओके, ये लैब आपको भी करना है, मैं आपको लैब पे एक्सेस दूंगा, आपको खुद करना है। कैसे करना है ये आप ढूंढ लो, मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, इसलिए आपको वीडियो को बार बार देखिए और कैसे करवाना मुझे करवा के दिखाना सब लोग, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी .NX हमने किया है, इट मैच सेट। ओके, यूजर नाम आ गया। ओके, ये मैक का ऑथेंटिकेशन नहीं है, .NX बेस्ड है। ओके, डिपार्टमेंट दिख रहा है फाइनेंस, जो हमने कॉल किया था डिपार्टमेंट फाइनेंस आ गया, मतलब वो यूजर सिर्फ फाइनेंस का यूजर है, इसमें सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये .NX की अपना विदाउट एडी हम लोग .NX अचीव कर सकते विद हेल्प ऑफ लोकल डेटाबेस के थ्रू। ओके, देखिए अपने ग्रुप जो कॉल किया था ग्रुप आया 1, ये आपका ग्रुप आईडी कॉल करता है आपने। रेडियस पैकेट से, ओके, इथरनेट से। अभी हम पोर्ट को शट नो शट करके देखते हैं एक बार स्विच के ऊपर, मैं स्विच के ऊपर पहुंच जाता हूँ। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ क्योंकि फॉन्ट साइज छोटा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा करेक्ट। एक बार मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिग टी, ये मैं इसको आपको डू शो वर्जन देख लीजिए क्या है, ये L3 स्विच है मेरा, लेकिन ये लैब के लिए यूज हो रहा है, करके नो इशू। ओके, इस लैब है, ठीक है। अभी इंटरफेस पास इथरनेट 0/21 शट डाउन। अब एनीडेक्स निकल गया क्या, 1 सेक, एनीडेक्स निकल गया, 1 सेकंड। शट डाउन, नो शट, एग्जिट। उसके बाद हम मारते डू शो ऑथेंटिकेशन, शो अब हो रहा है वो, शो ऑथेंटिकेशन सेशन हो गया सक्सेस। अभी हम लॉग चेक करें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/21। ठीक है, इस तरह से आपका भी लॉग इसी तरह से आना चाहिए। मैंने आपको टेम्पलेट दिया, एक बार वापस में टेम्पलेट रिवीजन कर ले तो क्या क्या करना है वो ध्यान रहे। .NX में हो रहा है ये .NX ऑथेंटिकेशन यूजर नेम बेस पर हम लोकल डेटाबेस। ओके, शो रन बता देता हूं आपको। कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमारा लैब है ये भी। पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन 21 पे कॉन्फ़िगरेशन में जो बता वही कॉन्फ़िगरेशन है, कोई चेंज नहीं है। ओके, ये सर्वर है, ये मेरा ऑथ सर्वर डाला है देखो, ठीक है। और आपको क्या रहेगा, शो रन पाइप ds
ये डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन अपना। एक्चुअली ये जो दिखा रहा है ना ये नॉर्मली रॉन्ग है, मैंने दूसरे किसी के लिए R&D के लिए किया था, वो सब चीज़ें ये निकाल देना, इसकी ज़रूरत नहीं। ये 1812 1813 ही यूज़ करना, दूसरा यूज़ मत करना, कंफ्यूज मत होना, इसको मत डालना आप। ये मेरा दूसरे R&D सेशन के लिए था पोर्ट स्पेसिफिक, इसलिए हमने उसको यूज़ किया था, बट ये आप यूज़ मत कीजिए, नहीं तो हम इसको निकाल भी दे देंगे, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं इसकी एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, सो एक बार हम लोग, ठीक है चल रहा परफेक्ट। सो IP डिवाइस ट्रैकिंग, उसका मैक आ जाएगा, एक्टिव आ जाएगा, सेशन परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये भी आपको लैब करवाना है। अभी जस्ट मैं आपको रिवाइज करता हूँ हमने क्या क्या करवाना है, कैसे करवाना है, किस किस पे करवाना है। पहली बात चीज़ आपको क्या करना है, मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। टेम्पलेट आपको मैं जस्ट इधर है क्या टेम्पलेट, 1 सेकेंड। टेम्पलेट में आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ये टेम्पलेट है। ये लैब आपको खुद करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें IP एड्रेस चेंज होगा सिर्फ, और सर्वर का क्या होगा, प्रीसेट की चेंज होगा, बाकी सबको टेम्पलेट सेम रहेगा। सेकंड चीज़ क्या रहेगा, इंटरफेस में जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, इंटरफेस में ऑल टेम्पलेट सेम होगा। इसमें सिर्फ आपको इसमें विलान कॉल करना है, जो विलान पे आप कॉल करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास विलान 1 ही है बाई डिफ़ॉल्ट, इसलिए विलान 1 को कॉल किया। ठीक है, ये 2 चीज़ करना है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, उसके बाद हम जाएंगे अपने इसके ऊपर PPT की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारा टैब लैब आपको दिया जाएगा, सेम लैब है, आपको चेंज क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपका आएगा ये, पहले क्या करना है, स्विच को ऐड करना है, प्रीसेट की ध्यान रखना है, वेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड चीज आपको क्या करना है, प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल में विलान कॉल करना है। ठीक है, सेकंड चीज आपको पॉलिसी को, पॉलिसी में आपको डिपार्टमेंट दिखना है, डिपोंडा फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर आपका डिपार्टमेंट 2 थे, IT है, HR है, मल्टीपल, तो मल्टीपल आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड थिंग आपका सर्विसेज बनाना। सर्विसेज में आपको ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम जो है वो लोकल डेटाबेस रहेगा, लोकल यूजर रिपोजिटरी रहेगा। ठीक है, उसके साथ आपको इस सर्विसेज में आपको किसी पर्टिकुलर स्विच को कॉल करना है, तो सर्विसेज में पर्टिकुलर स्विच को आपको कॉल करना पड़ेगा, ग्रुप को कॉल करना, ग्रुप को कॉल कर सकते। इसमें कोई भी ग्रुप को कॉल नहीं किया, ये ब्रॉडकास्ट है, मतलब ऑल द मेरे नेटवर्क में जितने भी स्विचेस है, यूजर्स है, वो सबको अप्लीकेबल हो गया। लेकिन अब किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर स्विच को कॉल करना चाहती है, पर्टिकुलर PC को कॉल करना चाहती है, तो उसको आपको कंडीशन को कॉल करना पड़ेगा, ये ध्यान रहना। इसमें आपको कंडीशन में ऑथेंटिकेशन जो आएगा प्रोटोकॉल्स मेथड से, वो PIP MS पास वर्जन 2 लोकल यूजर रिपोजिटरी इस मैंडेटरी है। उसके बाद इस पॉलिसी में आपको जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी बना है वो आपको कॉल करना है। ठीक है, सेकंड थिंग आपको एक यूजर बनाना है, यूजर को आपको यूजर नेम पासवर्ड ध्यान रखना है कि वही यूजर नेम पासवर्ड से आपका यूजर ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको PC पे जाके क्या करना है, PC पे आपको वायर्ड services.msc मार के वायर्ड ऑटो कॉन्फिग वायर्ड मैनुअल रहेगा, उसको ऑटोमेटिक करना है। सेकंड थिंग आपको ऑथेंटिकेशन मार के सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी 2011 एनेबल करना है। इसके बाद ओके करना इसको। उसके बाद MS कीप में जाके सेटिंग में जाके चेंज करना, यूजर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वो चेंज करना PC में। उसके बाद जब भी PC आपको क्या करना है, PC ये सब सेटिंग होने के बाद आपको एक बार लैन केबल निकाल के कनेक्ट करना। उसके बाद आपको जब आप जाएंगे तो आपको एक लैन कार्ड पे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, रेड कलर का क्वेश्चन मार्क आएगा, और आपको एक पॉपअप आएगा, यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, आपको यूजर ने पासवर्ड डालेंगे, उसके हिसाब से पॉपअप हट जाएगा और PC ऑथेंटिकेट होगा विद delpub.onex। ठीक है, ये लेक्चर का पार्ट था आज का। ये लेक्चर बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसको आप इस पहले लॉग में क्या आ रहा है, ये लॉग हमने जब किया वो रिजेक्ट आ रहा था, क्यों आ रहा था कि हमारे पास लोकल डेटाबेस में यूजर मौजूद नहीं था। करेक्ट, तो ध्यान रहे कि जो भी आ रहा है वो लॉग चेक करना आपके यूजर में। पहली बार जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगर करते हो उसमें आपको लॉग वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग करने के लिए। तो लॉग में देखना कि चेंज क्यों हो रहा है, मतलब क्यों नहीं आ रहा लॉग। ठीक है, अभी जो लॉग है उसमें क्या क्या आपको सब बता दिया मैंने, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय किया। तो सेम आपको ये लैब करना है, मैं आपको लैब का एक्सेस दूंगा कल सुबह 1 बजे से।
दोपहर में 1 बजे से। तो आप वो लैब एक्सेस करके सबको ट्राई करना है। तो ट्राई होने के बाद आप मुझे बताना, जो उसका भी गलत होता है उससे मुझे व्हाट्सअप करेगा, हम उसके ऊपर ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, कोई ये लैब सेटअप सबको करना है, इस मैंडेटरी कंपलसरी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही में ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइम पे होगा। ओके, किसी को समझ में नहीं आया होगा या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कोई डाउट हम उसको सॉल्व करेंगे। नहीं, डॉटोनिक्स ये हम लोग इसलिए करें कि डॉटोनिक्स हमारे कंपनी में डोमेन डायरेक्टरी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग एडी को न यूज़ करते। हम लोग एक लोकल डेटाबेस एडी यूज़ कर हम उसको अपना यूज़र नेम बेस्ड पासवर्ड बेस्ड हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं, ये हमारा मकसद है। नहीं, नॉर्मली सभी में होता है, बट अनटिल अनलेस किसी कंपनी में नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, क्लियर पास तो कुछ उनको तो सोल्यूशन चाहिए ना। तो हमको सोल्यूशन देने के लिए ये करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ऐसे ऑप्शन है कि जिसकी तरह हम लोग आपको यूजर नेम बेस्ड हम लोग एक्सेस करा सकते हैं। ये तो आपका डॉटोनिक बेस्ड हुआ। अगर आपको टकास बेस्ड करवाना है, किसी स्विच और किसी राउटर को टकास आपके यूजर नेम पासवर्ड से लागू होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लोकल डेटाबेस के, तो भी वो पॉसिबल है। उसका अलग हम लोग फिर कभी करेंगे। तो ये भी है, जरूरत नहीं कि आपका एक एंड पॉइंट को आप ऑथेंटिकेट करवा सकते विद द हेल्प ऑफ लोकल डेटाबेस के थ्रू। अगर आपके किसी यूजर को सिस्को का राउटर हो या फायरवॉल हो, उसको भी आप इसके थ्रू यूजर नेम पासवर्ड हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन लोकल डेटाबेस उसी के थ्रू आप लॉग इन करवा सकते हो। ठीक है, एडी नहीं है तो आप दोनों भी रेडियस प्लस टका दोनों आप अचीव कर सकते हैं इसके विद हेल्प ऑफ लोकल डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रेडियस ही, तो दोनों भी आप उससे कर सकते हैं। उसका हम लोग लैब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम टकास को भी हम लोकल डेटाबेस से भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। ओके, और कुछ क्वेरी है? नहीं, विलान आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, डिपेंड करता है पॉलिसी के अंदर। आप विलान डाला है तो अच्छा है कि वो उसी पॉलिसी को हिट करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल विलान नहीं डालते, विलान कंडीशन निकाल देना, कोई बात नहीं। डिपेंड पॉलिसी इनपोर्स में पॉलिसी आप चेंज कर सकते हैं, वट एवर जो आपको पॉलिसी चाहिए, जो कंडीशन जब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी करते हैं, कोई आपको क्वेरी आएगा, वो क्वेरी आपको लॉक को चेक करके ही आपको सॉल्व करना है। बिना लॉक पढ़े, बिना लॉक को समझे आप किसी चीज़ को सोल्यूशन नहीं दे सकते। तो लॉक को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, लॉग आपको एक्सेस ट्रैकर में दिखेगा। एक्सेस ट्रैकर में जो भी हीट आएगा, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, वो आपको सब दिखाई देगा। आप लॉग इधर भी चेक कर सकते हैं। आप जो भी चाहिए आपको लॉग, आप जो भी चाहिए, जैसे नास आईपी एड्रेस में डालने से डाल दीजिए तो नास आईपी एड्रेस आ जाएगा इसमें। देखिए नास आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको, यह मेरा नास मतलब आपका स्विच का आईपी एड्रेस। जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं, मल्टीपल इसमें एक्सेस है। ऐसा नहीं कि नाम है, सर्वर नाम है, जो भी चाहिए आपको। लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग उतना ज़्यादा आपका डेटा साइज डैशबोर्ड का साइज बढ़ता जाएगा। तो जो ज़रूरत है उसी को लो, बाकी ज़रूरत की नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, यस थैंक यू।